Hello everyone, my name is Swati, your English educator from Magnet Brains. Welcome. Today we are going to start the supplementary reader, an alien hand of the 7th standard NCERT syllabus. So we are done with the honeycomb book. We have dealt with all the chapters, all the poems. Now we are about to commence with this new book, an alien hand. Ab isme we have got 10 chapters, no poems. Okay, but all these 10 chapters are amazing, interesting and wow. Why? Because हर chapter में you're going to learn a lot of facts about things, you're going to learn beautiful things, एक बहुत सारी information मिलने वाली और ये पूरी information बहुत interesting है. आपको पता भी नहीं होगा, you will get to know about different creatures, different things and you will learn a lot, right? So are we ready to begin this new book? Yes, we are ready. Now, the first chapter is also very interesting and it is full of amazing facts that I am sure you had no idea about before. So, to begin with this, what's the name of our chapter? The Tiny Teacher. Okay, who is a teacher? A teacher is someone who teaches you, right? Maths, physics, chemistry, biology and English and Hindi and Sanskrit and what not. So, is that it? क्या इतनी definition होती है teacher की? No. A teacher is someone who gives you knowledge, जो आपको अपना wisdom देती हैं. वो आपको कुछ भी सिखा सकती हैं. A teacher teaches you the way of life. जीना कैसे है, हंसना कैसे है, आपको life में आगे बढ़ना कैसे है, right? So, a teacher can teach you everything. So who can be a teacher? A teacher can be a very छोटा सा बच्चा, or a teacher can be a very बूढ़े uncle, or a teacher can be a cute little cat, or a teacher can be an elephant. So क्योंकि सीखने को तो हमें सबसे मिलता है, हमारा nature हमें continuously बहुत सारी चीजें सिखाता है, right? So let's begin our first chapter. And here, who is our little tiny teacher? Let's see that. So let's begin. Now, before we start, of course, with the help of the picture, we know whom are we talking about. We are talking about the tiny, tiny ant. An ant can be a teacher? Yes or no? Let's know some very important facts about ant first. Though so very small, the ant is unbelievably intelligent and hardworking. Is it? Do you think that ant is very intelligent? इतनी तो होती है वो ज़रा सी. So do you think that an ant is very intelligent and unbelievably intelligent? मतलब जितना आप सोच नहीं सकते उतनी intelligent. Among the various kinds, the commonest ant is black or red. This we all know, right? Black ant होती है तो ठीक है, फिर भी अपन लोग वहाँ से गुजर जाते हैं. Red होती है तो बहुत जोर से काटती है. We know these two kinds of ants. Ants live in comfortable homes called ant hills. अब ants जो हैं वो कहाँ रहती हैं? They live in their very comfortable homes, जिनको हम ant hills कहते हैं. All clear? Let's begin our chapter now. Name the smallest insect you have seen and the wisest. मतलब सबसे छोटी और सबसे ज़्यादा intelligent कौन सी insect होती है? Is it the fly? मक्खी? No, it is not. Is it the mosquito? मच्छर. उसको exactly वैसे वो भी बड़ा intelligent होता है, उसको पता होता है कहाँ जाके काटना है ना. मतलब आप कितने भी मोटे मोटे कपड़े पहन लो वो कहीं तो घुस के काट ही लेता है. No, not the mosquito. Then it must be the worm. Is it? No, none of these. It is the ant. It is the ant. Remember this thing? Since A is a vowel, I will not say the ant. We have to say the ant. Okay? Now, the commonest, the smallest, but the wisest insect. सबसे कॉमन है, जहाँ थोड़ा सा शक्कर की वो मिल ही जाती है, कहीं ना कहीं आ ही जाती है, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है और सबसे ज़्यादा छोटी है. The story of an ant's life sounds almost untrue, which means now as we read the story of an ant's life, you would not believe it. It is almost, you will feel that ऐसा होता है. I mean that small tiny creature, literally उसकी life इतनी organized होती है. But people have kept ants as pets and have watched their daily behavior closely. But a lot of people who were like very inquisitive, जिनको बहुत जानने का मन था about ants, तो उन्होंने ants को as pet रखा, मतलब उन्होंने पाला और they
observed the behavior of an ant very closely. So, we know a number of facts about this tiny, hard-working and intelligent creature. Again and again, we are calling our ant tiny, hard-working and intelligent, so remember this. An ant uses its feelers or antenna to talk to other ants by passing messages through them. Now that is the first thing. Have you ever observed जब एक चींटी की लाइन ऐसे चलती रहती है, so every time जैसे वहाँ से कुछ चींटियाँ आ रही है और यहाँ से कुछ चींटियाँ आ रही है, every time they meet each other, वो एक सेकेंड के लिए रुकती हैं and then they move. ऐसा लगता है हाय हेलो करने के लिए रुक रही हैं, right? Actually that is true. वो एक दूसरे को फील करती हैं विद द हेल्प ऑफ देयर एंटेनास. जो एक एंट होती है, सो एंट के घर पे जो एंटेनास होते हैं, या इनको फीलर्स भी कहते हैं. फीलर्स कहते हैं मतलब विथ विच दे फील ईच अदर. सो दे टॉक टू अदर एंट्स, मतलब वो उस वक्त उनसे बात करती हैं, वो उन्हें मैसेज डिलीवर करती हैं, एंड दैट इज ऑल दे डू. जब वो एक दूसरे को पास करती है, वो जो एक सेकेंड के लिए दे स्टे, they talk to each other, and that is it. Watch a row of ants moving up or down the wall. Each ant greets all the others coming from the opposite direction by touching their feelers. So, irrespective of the thing, कि हमारे साथ क्या होता है ह्यूमंस के साथ, कि अगर हमें कोई अच्छा लगता है तो हम उसको जाके हाय हेलो कर देते हैं, और अगर हमें कोई अच्छा नहीं लगता है तो हम उसको देखते भी नहीं, टोटली इग्नोर मोड पे डाल देते हैं. बट विथ एंट्स, जितनी बार वो एक दूसरे के सामने आते हैं, दे ग्रीट ईच अदर, दे से हाय हेलो or they pass messages, anything, but it's not like they will ignore each other. So that is something we should learn from ants. There are many kinds of ants. The commonest among them are the black or red ones. अब बहुत सारे तरीके की ants होती हैं, लेकिन जो most common ant होती है वो होती है black और red. ये second point है, याद रखना इसे. We have seen them since we were children, but haven't paid enough attention to them. हम जब बहुत छोटे से तब से हम एंट्स को देखते आ रहे हैं, बट आज तक हमने थोड़ा सा भी अटेंशन दिया है? बस ये दिया है कि अगर नीचे शक्कर गिर गई या कुछ मीठा गिर गया या कुछ खाने का गिर गया, चींटियां पड़ जाएंगी. बस चींटियां पड़ जाएंगी, इधर तक ही है. उसके आगे हमने चींटियों को कभी भाव ही नहीं दिया. Where do they live? In their comfortable homes called nests or ant hills. कहाँ रहती हैं चींटियां? चींटियां रहती हैं, उनके घर को हम क्या कहते हैं? या तो हम नेस्ट कहते हैं या तो एंट हिल्स कहते हैं. रिमेंबर, हमें एंट हिल्स तो समझ में आ रहा है, बट वी यूज द वर्ड नेस्ट विद बर्ड्स, बट चींटियों के घर को भी यू कैन कॉल देम नेस्ट. Each has hundreds of little rooms and passages. In some of these rooms, the queen ant lay eggs. अब यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि इनका जो एक घर होता है, एंट हिल होता है. कभी आपने देखा होगा कि ऐसे पार्क में अपन जा रहे हैं, ये जैसे अगर मान लो ये ग्राउंड है, तो एक इस तरीके का मिट्टी का पूरा एक हिल जैसा बना होता है. वो ऊपर से तो बहुत कम दिखता है, लेकिन इफ यू विल एवर ट्राई टू डिग इट, वो बहुत ज्यादा गहरा होता है. मतलब गहरा होता है और बहुत फैला हुआ होता है. मतलब इफ यू विल सी, सो वो आई रिमेम्बर आई सॉ अ मूवी, तो ये इस तरीके से पूरा फैला हुआ रहता है. वो कहाँ कहाँ तक फैला होता है? किलोमीटर्स तक भी फैला हुआ हो सकता है. वो एंट हिल अंदर से इतने डीप हो सकते हैं. नाउ एंट हिल में बहुत सारे रूम्स होते हैं. जैसे हमारे घर में क्या होता है, 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK, उन लोगों के इसमें हंड्रेड्स ऑफ रूम्स होते हैं. और इन सम ऑफ दीज रूम्स, अब जो कुछ रूम्स होते हैं उसमें सिर्फ जो क्वीन एंट होती है वो सिर्फ एग्स ले करती है, मतलब वो सिर्फ वहाँ पे अंडे देती हैं. Others are nurseries for the young ones. So now let's see, जैसे कि if you can look at this picture, so this is like an ant hill, और इसमें ये बहुत अलग अलग रूम्स हैं. So exactly इस तरीके के रूम्स होते हैं वहाँ पे. एंड जैसे एक स्टोर रूम होता है, एक जो होता है नर्सरी होता है. नर्सरी क्या होता है? जहाँ पे जो ये एग्स होते हैं, जहाँ आप इनको रखते हो, इनका केयर करते हो. नर्सरी एक्चुअली क्या प्लेस होती है? जहाँ पे आप बच्चों को
केयर करते हो, जहाँ पे आप जैसे जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनको फीड कराना, उनका ख्याल रखना, उनको क्लीन करना। सो एग्जैक्टली नर्सरी में एग्स के साथ भी ऐसा होता है। जो एकदम जो छोटी एंट्स होती हैं जिन्हें ग्रब्स कहते हैं, उनको भी उनकी क्लीनिंग, उनको एयरिंग, उनको उनकी एक्सरसाइज एंड ऑल दीज थिंग्स दे हैपन इन दी नर्सरीज। Now let's move ahead. Workers have their reserved quarters. अब वर्कर्स जो होते हैं, सो हियर इफ वी टॉक अबाउट अ बिग एंट हिल, इसमें बहुत सारे रूम्स हैं, राइट बहुत सारे रूम्स हैं। सो यहाँ पे कुछ नर्सरीज होगी, जैसे मान लो बहुत सारी नर्सरीज है, यहाँ पे कहीं पे जो क्वीन है उसके एग्स रखे हुए हैं। अब बहुत सारे वर्कर्स होते हैं यहाँ पे। सो जो वर्कर्स होते हैं जिनका काम होता है टू अरेंज फूड, ओके, सो इनका काम होता है अरेंज फूड। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। सो वर्कर्स क्या करते हैं, दे अरेंज फूड। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेस फॉर दिस फूड। अब ये जब है, ये कंटिन्यूसली ये लोग खाना लेके आ रहे हैं। क्यों लेके आ रहे हैं? बिकॉज ड्यूरिंग द मॉनसून्स इट इज़ नॉट ईजी फॉर देम टू गो आउट, क्योंकि बारिश में तो चींटियाँ नहीं जा सकती कहीं पे। सो इट इज़ नॉट ईजी फॉर देम एट लाइक ड्यूरिंग मॉनसून्स दे रिमेन इनसाइड, और जो इन्होंने पूरा खाना स्टोर किया हुआ है दे ईट इट। सो ये अब खाना स्टोर कहाँ होगा? ये स्टोर रूम में होगा। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरिक्स। जो ये सोल्जर्स होते हैं, अब यहाँ पे वी हैव अ क्वीन एंट, अभी हमें पता चला क्वीन एंट हुए। फिर जो उनके जो नए नए बच्चे होते हैं उन्हें हम ग्रब्स कहते हैं। देन वी हैव सोल्जर्स एंड वी हैव वर्कर्स। अब ये सोल्जर्स क्या होते हैं? ये जो सोल्जर्स होते हैं इनके ये अपने बैरिक्स में रहते हैं, मतलब ये जो वर्कर्स का क्वार्टर होगा उसमें कोई सोल्जर नहीं रहेगा। और जो सोल्जर के जो बैरिक्स होते हैं, बैरिक्स मतलब इनकी एक बिल्डिंग होती है, और लाइक बेसिक मीनिंग क्या है? अ लार्ज बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स यूज्ड टू हाउस सोल्जर्स। जहां सोल्जर्स रहते हैं उन्हें बैरिक्स कहते हैं। So basically here we are talking about rooms. The only thing is since soldiers live there, we are calling it as barracks. So बैरिक्स जो होते हैं वहां पे आपके सारे सोल्जर्स रहते हैं। सो वर्कर्स क्वार्टर्स में रहते हैं, सोल्जर्स बैरिक्स में रहते हैं। कोई सोल्जर क्वार्टर में नहीं रहेगा, कोई वर्कर बैरिक में नहीं आएगा। सो दे हैव स्ट्रिक्ट रूल्स देयर। No worker has ever tried to live in a soldier's house. No soldier has ever gone out searching for food. मतलब इन सबके जो काम है वो डिफाइन है। क्वीन भी जो है, सॉरी क्वीन एंट जो है वो फूड के सर्च में नहीं जाएगी, या वो क्लीनिंग नहीं करेगी, या वो नर्सरी में जाके बच्चों का ख्याल नहीं रखेगी। सिमिलरली जो वर्कर्स होते हैं दे विल नॉट प्रोटेक्ट, वो सोल्जर का काम नहीं करेंगे। दे विल ओनली डू वन थिंग विच इज देयर जॉब। व्हाट इज देयर जॉब? देयर जॉब इज टू सर्च फॉर फूड। जो सोल्जर्स हैं देयर जॉब इज टू प्रोटेक्ट, राइट? सो सोल्जर्स दे विल नेवर गो आउट इन सर्च ऑफ फूड। No worker or soldier or cleaner has ever harmed a grub. अब इसमें क्लीनर भी होते हैं, इतनी बड़ी एंट हिल होती है तो इसकी सफाई तो करनी पड़ेगी, राइट? सो इनमें क्लीनर्स भी होते हैं। एंड देयर इज अ थिंग, नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज एवर ट्राइड टू हार्म अ ग्रब। जो छोटे एग्स होते हैं वो कभी इन छोटे ग्रब्स को, जो छोटे छोटे उनके जो एग्स होते हैं, इनको कभी भी हार्म नहीं करते। So you see, an ant's life is very peaceful. Why is it so peaceful? What is peaceful? मतलब बहुत आराम वाली होती है। आराम का मतलब लेजी नहीं, आराम का मतलब इनमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। हमारे ऑफिस में क्या होता है कि अरे यार मैं नहीं आ रहा हूँ, तुम मेरा काम कर लोगी क्या? या फिर अरे यार उसका काम भी मुझे मिल गया, या मुझे बॉस ने इसका भी काम दे दिया, उसका भी काम दे दिया, या मैं नहीं हूँ, मैं किसी का काम नहीं कर रही हूँ। तो बेसिकली क्या होता है? काम स्पिल होता है, तुम्हारा काम मैं कर रही हूँ, मेरा काम कोई और कर रहा है, एंड उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं। कन्फ्यूजन्स होते हैं तो लाइफ मेस हो जाती है। लेकिन एंट्स के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। दे लिव अ वेरी पीसफुल लाइफ। हाउ? बिकॉज सबका वर्क डिफाइंड होता है एकदम प्रॉपरली। Each does its share of work intelligently and bravely and never fights with other members of the group. जब किसी को दूसरे के काम से लेना देना ही नहीं है, जब सबके जो वर्क शेड्यूल है वो डिजाइंड है, जब सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी डिजाइंड है, तो वो लोग आपस में क्यों भिड़ेंगे, राइट? सो ये लोग बहुत पीसफुल लाइफ रहते हैं और ये सब बहुत इंटेलिजेंटली और ब्रेवली अपने काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट, मूव ऑन।
Now we have a very small comprehension check. So let's see this. The story of an ant's life sounds almost untrue. Why? ये जो almost untrue है ये क्यों है? Because is it highly exaggerated, too remarkable to be true, or not based on facts? It is based on facts. It is also not too it is too remarkable to be true, but yes it is, and it's highly exaggerated. So ये जो almost untrue का मतलब क्या होता है? Highly exaggerated. What is the meaning of the word exaggerated? बढ़ा चढ़ा के बताना. But यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा है. यहाँ पे बस almost untrue. इसका जो मीनिंग है वो है कि बहुत ही बड़ा चढ़ा के बताई है ये बात. Next is to complete the following sentences. Like we have to complete the following sentences. An ant is the smallest. Now if you will look into the chapter, what was the answer? Commonest and wisest insect we have seen. Okay. Next one is, we know a number of facts about an ant's life because there are people who have kept ants as pets and have watched them closely. ये दोनों लाइन्स बुक से ही ली गई हैं. चैप्टर में फर्स्ट पेज जो था उसको जब हमने रीड किया था तो ये दोनों लाइन्स आई थी. सो आई होप इट्स वेरी इजी. In what ways is an ant's life peaceful? Ants की लाइफ जो होती है वो पीसफुल क्यों होती है? Because जितने भी उनके जो ants में जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो प्रॉपरली डिजाइंड होती है. कोई दूसरे का काम नहीं करता, कोई दूसरे के लिए रिक्वेस्ट नहीं करता, and they do not fight ever with each other. So let's see. An ant's life is peaceful because all of them do their work bravely, honestly and intelligently. सब लोग अपना काम bravely करते हैं, मतलब they are not scared, honestly करते हैं, ईमानदारी के साथ करते हैं, and intelligently मतलब और समझदारी के साथ करते हैं. They do not interfere into work of each other. वो एक दूसरे के काम में कोई टांग नहीं अड़ाते. No interference, right? Now let's continue with the chapter. The queen is the mother of the entire population of the colony. Now here we are going to talk about the queen ant. जो queen ant होती है, she is the mother of the entire ant colony. And कितने साल जीती है वो? It lives for about 15 years. So first she is the mother of the entire population, and second it lives for 15 years. Now it has a pair of wings. Okay, so जो queen ant होती है उनके wings होते हैं. चींटी जो होती है ना जिसके कुछ कुछ के पंख होते हैं, so queen ant के पंख होते हैं, but it bites them off after its wedding flight. So what is a wedding flight? So when the queen ant is big enough, so वो क्या करती हैं? It takes a flight, मतलब वो it flies high up in the air to meet the male ant. और वहाँ जाके they mate with each other, and then once she comes back to the ground, she just bites off her like wings, और उसके बाद she does only one job, which is laying eggs. So let's read this. This flight takes place on a hot summer day. अब ये जो फ्लाइट होती है मतलब ये जो ऊपर उड़ के जाती है वो मेल एंट के पास, जो चीटा बोलते हैं हम जिसको, ये जो जाती है ये सिर्फ एक हॉट समर डे में होता है. The queen leaves the nest and goes out to meet a male ant or drone high up in the air. अब हम मेल एंट को क्या बोलते हैं? We also call a male ant a drone. So वो जो चींटी होती है एक hot summer day में it flies high up in the air to meet the drone. Then what happens? On its return to earth, it gets rid of its wings and then does nothing but lay eggs. And once after the wedding, मतलब इनकी जो शादी हो जाती है उसके बाद once she is back on the ground, उसके बाद she does nothing, just one thing, which is lay eggs. Eggs hatch and grubs come out. जैसे ये जो छोटे छोटे एग्स होते हैं ये हैच होते हैं, सो उनमें से जो एकदम छोटी जो टाइनी एंट होती है जो बच्चा होता है उसको हम कहते हैं ग्रब दैट कम्स आउट. सोल्जर्स गार्ड देम, वर्कर्स
feed and clean them and also carry them about daily for airing, exercise and sunshine. So यहाँ पे soldiers की अगर हम बात करें तो वो क्या करते हैं, वो उनको गार्ड करते हैं. गार्ड करते हैं मतलब उनको प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि जैसे बाकी कीड़े होते हैं कहीं कोई खा ना ले, कोई उनके ऊपर पैर ना रख दे, एनीथिंग कैन हैपन, राइट. सो जो सोल्जर्स का एक ही काम होता है टू गार्ड देम, सो दे गार्ड देम. तो ये हो गया हमारे पास पहली चीज. दूसरा होते हैं वर्कर्स. अब वर्कर्स का काम होता है उनको खाना खिलाना. वो उनको खाना खिलाते हैं एंड दे डेली टेक देम आउट फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन. सो दीज आर द टू जॉब्स ऑफ द वर्कर्स. थर्ड इज 2 or 3 weeks later grubs become cocoons. अब ये जो grubs है, जैसे ये पैदा होते हैं, जैसे अंडा हैच करता है, एग जो है वो हैच कर देता है, तो इसमें से ग्रब्स निकलते हैं. नेक्स्ट 2 or 3 weeks तक जो वर्कर्स होते हैं, दे कंटिन्यूसली फीड देम, दे टेक देम आउट फॉर एक्सरसाइज, सनशाइन, एयरिंग, एंड 2 or 3 weeks के बाद ये कुकून्स बन जाते हैं. मतलब इस तरीके से, जैसे अगर ये छोटा सा एंट है तो इसके आसपास पूरा जो है ये एक थिन यू कैन से फैब्रिक जैसा पूरा कवर कर देता है. जो यूजुअली जो होता है वो जो सलाइवा टाइप का होता है, जो फाड़ना पड़ता है, तो ये अपने आप को पूरा कवर कर लेते हैं. जैसे आपने मान लो एक चादर से अपने आप को कवर कर लिया, तो ये पूरे कुकून में कवर हो जाते हैं. नाउ and live without food or activity for 3 weeks more. और next 3 weeks तक अब ये ना खाना खाएंगे क्योंकि ये totally covered है. It's like they are totally packed. एक sleeping bag में बंद हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं cocoon. So 3 weeks तक अब ये एकदम बंद है. They will not eat anything or they will not move. उनको उन सब मतलब अब totally packed है. Next 3 weeks तक हमें उनको देखने की जरूरत नहीं है. Only the soldiers are going to guard them. So then the cocoons break and perfect ants appear. तो जैसे ही 3 weeks के बाद ये जो cocoons होते हैं ये फिर से फटते हैं, ये ब्रेक होते हैं और इनमें से perfect छोटी छोटी ants बाहर आ जाती हैं. Now it's time for teaching and training. अब बड़े हो गए वो लोग, 3 weeks हो गया. अब छोटे छोटे बच्चे जैसे आप लोग होते हो, आप लोग the moment you are 3 years or 2.5 years, and what do? You start going to play school, then you go to your nursery and KG1 and KG2. Similarly इनकी भी ट्रेनिंग और टीचिंग स्टार्ट हो जाती है. सो जो बड़ी एंड्स होती हैं, न्यू एंड्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड एंड्स. जो ओल्ड एंड्स होती हैं वो इनको नई नई ड्यूटी सिखाती हैं. अब इनकी ड्यूटीज क्या होती है, कौन कौन से लोग होते हैं वहाँ पे, वर्कर्स होते हैं, क्लीनर्स होते हैं, देन यू हैव सोल्जर्स. सो यहाँ पे उनको हर कुछ सिखाया जाता है. वर्कर्स का काम, सोल्जर्स का काम, बिल्डर्स का काम. बिल्डर्स मतलब जो एंट हिल बनाना होता है, क्लीनर्स एंड एक्सेट्रा, मतलब उन्हें हर काम सिखाया जाता है. सो इट्स लाइक यू कैन कंपेयर देयर एजुकेशन विद आवर एजुकेशन. स्टार्टिंग में वी लर्न ऑल द सब्जेक्ट्स, right? The moment we come to 10th standard, then we have to choose our subject. कि इसमें से अब हमें सब नहीं पढ़ना, अब हमें थोड़ा कम पढ़ना है. So either you take maths or you take arts or you take science. उसके बाद जब हम कॉलेज में जाते हैं तो वो और छोटा हो जाता है, उसमें से भी हम स्पेसिफिक स्टडी करते हैं. फिर जब हम मतलब अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं तब हमारे पास एक ही सब्जेक्ट रहता है, राइट? Similarly, when they are young, ये जो चींटियाँ होती है, when they are very small, इनको सारे काम सिखाए जाते हैं. फिर as per their expertise, उनको देखा जाता है कि वो किस काम में अच्छे हैं और अकॉर्डिंगली बाद में जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनको जॉब असाइन किया जाता है कि अरे वाह तुम तो अच्छे बिल्डर हो, यू विल बी अ बिल्डर, या तुम अच्छे सोल्जर हो, तुम एक सोल्जर होगे. सो after a few weeks training, the small ants are ready to go out into the big world of work. अब थोड़ी सी वीक्स की जब ट्रेनिंग इनकी खत्म हो जाती है, now they are all ready to go out. Okay? An ant hill is a home not only for ants but also for some other creatures. अब ये जो ant hill होता है इसमें सिर्फ चींटियां नहीं रहती, इसमें और भी creatures रहते हैं. कैसे creatures रहते हैं? Beetles, lesser breeds of ants and the green fly. इसमें beetles रहते हैं, कुछ और भी ants के जो breeds होते हैं, अलग अलग तरीके की जो ants होती हैं वो रहती है, और इसमें green fly रहती है. green fly कभी आपने देखा होगा, बहुत छोटी सी होती है, वो यूजुअली लीव्स के ऊपर भी दिख जाती है और वो एकदम कैमोफ्लेज कर जाती हैं जो लीव्स होती है ना. सो
उसको ग्रीन फ्लाई कहते हैं. नाउ व्हाई डू एंड्स वांट दीज एलियन क्रिएचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट्स? अब हम किसी को भी अपने घर में क्यों रखेंगे, राइट? सो यहाँ पे एंड्स जो हैं, चलो आप दूसरे तरीके की एंड को बुला रहे हो तो समझ में आता है, आप तो एकदम अलग क्रिएचर्स को अपने नेस्ट में रख रहे हो. देयर हैज टू बी अ रीजन फॉर इट. व्हाट इज द रीजन? फॉर several reasons. Some give off smell pleasant to the ants senses. कुछ जो होते हैं, ये जो बीटल्स होती हैं या अदर एंट्स होती हैं या ग्रीन फ्लाई होती है, इनमें से एक खुशबू आती है जो कि एंट्स को बहुत प्लेजेंट लगती है, एंड दैट्स वाई दे से कि हाँ आके रह लो, आपकी खुशबू बड़ी अच्छी लगती है हमको. Others give sweet juices and some are just pets or playthings like cats and dogs to human beings. मतलब ये जो एंट्स होती हैं, जैसे कि हम अपने घर में पेट एनिमल्स रखते हैं, तो कुछ इंसेक्ट्स को वो पेट एनिमल्स की तरह रखती हैं, जैसे प्लेफुल तरीके से कि चलो इनके साथ खेलने में मजा आएगा, और कुछ को वो उनके जूसेस के लिए रखती हैं. नाउ हियर द ग्रीन फ्लाई इज द एंट्स काउ. जो ग्रीन फ्लाई होती है वो जैसे हमारे लिए काउ है, वैसे ही काउ क्या करती है, इट प्रोवाइड्स अस मिल्क. वैसे ही ये जो ग्रीन फ्लाई होती है वो क्या देती है, द एंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क. जो एंट्स होती हैं वो ग्रीन फ्लाई को ट्रेन करती है सो दैट इट कैन गिव देम हनी ड्यू. हनी ड्यू इज ऑलमोस्ट लाइक मिल्क विद अ टच ऑफ देयर एंटीना. और कैसे, मतलब जो ग्रीन फ्लाई अपने एंटीना से इनको, मतलब जो एंट्स हैं वो अपने एंटीना से उसका हनी ड्यू लेंगे. दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ. सो जिस तरीके से हम जो होते हैं हम काउ को मिल्क करते हैं, उसी तरीके से ये जो है ये ग्रीन फ्लाई को मिल्क करती हैं, और जो हनी ड्यू होता है उसको अपने एंटीना के थ्रू दे रिसीव इट. हैव ह्यूमंस लर्नड एज मच एज एंट्स हैव? क्या हमने वाकई एंट्स से कुछ भी सीखा है? Perhaps they have, but they haven't put their learning to good use. हमने एंट्स के बारे में बहुत कुछ सीख लिया. उनकी लाइफस्टाइल कैसी होती है, वो कितने ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, वो कितने ऑनेस्ट होते हैं, कितने हार्ड वर्किंग होते हैं, कितने इंटेलिजेंट होते हैं. पता तो हमें बहुत कुछ है, सीखा हमने क्या? शायद कुछ नहीं, शायद कुछ. They must have they may still learn a few things from this tiny teacher. What are the things? Hard work, sense of duty and discipline, cleanliness, care for the young ones, and above all, a firm loyalty to the land where they live. So, what are the things? हमने बहुत सारी चीज़ें एंड से सीखी होंगी, हम भी बहुत हार्ड वर्किंग होंगे, हम भी बहुत ऑर्गेनाइज्ड होंगे, लेकिन एंड से सीखने वाली और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि है हार्ड वर्क. बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी होगी जिसमें एक माउंटेन है, वो एंड ऊपर जाती है, फिर फिसल जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर फिसल जाती है, बट इट डजंट लूज इट्स पेशेंस. वो हार नहीं मानती. इट कीप्स ऑन गोइंग टिल द टाइम इट रीचेज द टॉप. So, wo hard work we are supposed to learn from an ant. Sense of duty, which means you are supposed to do what has been given to you. You cannot make excuses. हम पूरे टाइम excuses नहीं दे सकते. If we are given some work, we have to do it. We have to complete it. And discipline. Discipline तो मम्मा, पापा, teachers, they keep on lecturing us about discipline. There has to be a time when we get up. There has to be a time when we go to sleep, when we eat, when we go out to play, when we complete our homework. बहुत बार क्या होता है, अरे यार अभी मन नहीं कर रहा होमवर्क करने का, एक काम करते हैं मैं पहले खेल के आ जाती हूँ या आ जाता हूँ, उसके बाद मैं होमवर्क करूँगा. No, you are supposed to do it and then you can do the next job which is there on the list, right? Cleanliness. कितने लोग हैं जो अपना रूम क्लीन रखते हैं या अपना सामान जगह पे रखते हैं? बहुत कम है. Okay, so cleanliness is another thing that we can learn from ant. Care for the young ones. I mean, we all take care of our siblings, our kids, our children, but do we really take care of them like they do? मतलब वो लोग properly एकदम disciplined होके, organized होके, and with their whole heart they take care of their loved ones. Similarly, you are supposed to do that. And above all, a firm loyalty to the land where they live, which means उनके लिए जहाँ वो रहते हैं वो उनके लिए सबसे ज़्यादा important place है. Like हमारे लिए हमारी country. Are we really loyal to our country? Yes, yes we are. And similarly, something that we have in common.
ants अपने ant hill के लिए बहुत loyal होते हैं, and that is again something we should learn from them. So now we are done with our chapter. Let's quickly look at the summary so that you would be able to answer the questions properly. The Tiny Teacher is a story that teaches us about the tiniest teacher we can learn from. It tells us about the ant who can be a great teacher if we look closely. So हम जो ये tiny chapter है, हमारा जो tiny teacher, वो जो चैप्टर है वो हमको बता रहा है जो टाइनिएस्ट टीचर के बारे में, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. और वो हमें क्या बताता है, हमें एंट के बारे में बताता है दैट एंट कैन बी अ ग्रेट टीचर अगर हम उसको क्लोजली ऑब्जर्व करें तो. An ant is a creature that can teach us great things about how to become disciplined and more. जो ant है, it can be a great teacher. वो हमें क्या क्या सिखाती है, how to be hardworking, how to be disciplined, how to be organized, how to be honest, how to be loyal, and a lot other things. They are so small yet they fulfill their duties with full dedication. वो इतनी छोटी होती हैं लेकिन उसके बाद भी अपने सारे काम पूरी डेडिकेशन के साथ करते हैं. In fact, they carry out their tasks very sincerely. उनके जितने भी काम होते हैं वो बहुत ही sincerely अपने सारे काम करते हैं. Further, they are also very hardworking and intelligent as well. Hardworking होते हैं, hardly working तो हम होते हैं, right? हम hardly working है या hard working है? अपने बारे में ज़रा बताना. सोचना. hardly working मतलब जो hardly काम करता है, बहुत ही कम, and hard working मतलब तो पता ही है. You will see them perform a lot of duties from a cleaner to a soldier, right? कौन कौन से पढ़े थे हमने? We have cleaners, we have builders, we have soldiers, we have और क्या थे? और क्या थे? Cleaners थे, soldiers थे, builders थे, and workers थे, right? Now the ants inhabit an ant hill where there are hundreds of little rooms and passage for all the ants. अब ये लोग inhabit मतलब ये कहाँ रहती हैं? एक ant hill में रहती हैं जहाँ पे hundreds of rooms होते हैं, सबके अलग अलग defined rooms. An ant hill is a home not for ants alone. और इसमें सिर्फ ants तो रहती नहीं है. Some other creatures like beetles and the green fly they also live in it. अब जो कुछ होते हैं वो सिर्फ उनकी स्वीट स्मेल के लिए रहते हैं, while others give sweet juices like green fly. The green fly gives them milk. Green fly क्या देती है उनको? Milk. They have a queen ant who lays eggs that become perfect ants. अब एक queen ant होती है जो continuously eggs lay करती हैं और later ये जो eggs हैं ये perfect ants बन जाती हैं. The queen learns all the duties from the old ant and gets ready to survive in the world. जो queen भी होती है और ये जो न्यू बॉर्न जो grubs भी होते हैं, इन सबको ये लोग नए नए जो पुरानी जो ants होती है उनसे सब कुछ सीखते हैं and then they are ready to live in the world. It has to be grubs. Now, human beings can learn a lot from this small teacher. We can learn from them hard work, sense of duty and discipline, cleanliness, loyalty and care for the young ones. This we have already studied. So, we are done with the summary. I hope you understood it well. What all things did we study? We studied about ant, उसकी life cycle कैसी होती है. ant सबसे पहले eggs देती है जो queen ant होती है, उसके बाद वो उन्हें हम grubs कहते हैं, right? जब वो ants hatch हो जाते हैं तो वो grubs हो जाते हैं, उसके बाद वो cocoon में पूरे बंध जाते हैं और उसके बाद जब उसमें से 3 weeks बाद जब वो निकलते हैं तब वो perfect ants बन जाते हैं. उसके बाद उनकी teaching और training होती है and after a few weeks they are ready to go out in the perfect world. So, do we remember everything clearly? Yes or no? If yes, let's begin with our question answers, and if no, then go back to the video, watch everything, learn, understand and then come here so that we can begin our question answers. Now let's see the first question. How long does it take for a grub to become a complete ant? So एक जो grub होता है, let's talk about the ant, वो उसका egg hatch हुआ फिर वो grub बन गया. अब वो 2 और 3 वीक्स के लिए पहले उसको फीड कराते हैं, एयरिंग होती है, एक्सरसाइज होती है, फिर वो 3 वीक्स के लिए कोकून में बंद हो जाता है, फिर वो 3 वीक्स बाद प्रॉपर्ली बाहर जाता है. सो अगर हम पूरा प्रोसेस देखें, सो लेट्स रीड इट. इट टेक्स 2 or 3 weeks for the grub to transform into cocoon
and then another 3 weeks to convert into a complete ant. So overall time कितना लग रहा है? Almost like starting में few weeks, then 2 or 3 weeks, and then 2 or 3 weeks. So calculate and tell me कितना exactly time लग रहा है. Why do the worker ants carry the grubs about? अब वो जो grubs को जो ये workers होते हैं ये बाहर लेके जाते हैं. क्यों लेके जाते हैं? क्यों? उनको फीड कराने के बाद दे टेक देम फॉर एक्सरसाइज, एयरिंग एंड सनशाइन, राइट. वो उन्हें बाहर लेके जाते हैं. जैसे हमारे लिए विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होती है, एयर इंपॉर्टेंट होती है. सिमिलरली वो जो टाइनी ग्रब्स होते हैं वो उनको बाहर लेके जाते हैं सो दैट दे कैन एक्सरसाइज, दे कैन गेट सनलाइट एंड दे कैन हैव अ लॉट ऑफ एयर. What jobs are new ants trained for? अब ये जो new ants होती है इनको क्या क्या सिखाया जाता है? इनको सारे काम सिखाए जाते हैं जैसे कि workers, cleaners, soldiers, builders, etc. Okay? I hope this answer was very easy. I found it very easy. Name some other creatures that live in ant hills. Ant hills में और कौन रहते हैं? Beetles रहते हैं, other breeds of ants and green fly. So beetles and green fly, and there was one more thing, na, other breeds of ants. Mention 3 things we can learn from the tiny teacher. Give reasons for choosing these items. अब आप लोगों को 3 चीजें बतानी है जो हम एक ant से सीख सकते हैं. So ant से तो हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं. हम cleanliness सीखते हैं, हम हार्ड वर्क करना सीखते हैं. Then we learn how to be organized. Then we learn how to be responsible for the duty that we have been given, how to take care of our young ones. So ये सारी चीजें हम सीखते हैं और भी बहुत कुछ. अब आपको 3 things you have to define. 3 things that we can learn from the tiny teacher are hard work, cleanliness, loyalty and care for the young ones. Now you have to give reasons for choosing these items. Why do you think that these 3 things you want? For example, suppose you say I want hard work, cleanliness and loyalty. Because hard work is very important to move ahead in life. Second, loyalty is important because until unless you are loyal with each other, you would not be able to trust anyone, and that is how, you know, again it would be very difficult for you to work together as a team. And cleanliness is godliness. Yeah, cleanliness is next to godliness. Cleanliness is very important. So जैसे हमारा स्वच्छ भारत अभियान चलता है, उनका स्वच्छ एंट हिल अभियान चलता है. Discuss the following topics in groups. So अपने groups में आप कौन से topics discuss करने? First one, what problems are you likely to face if you keep ants as pets? अगर ants को आपने, जैसे हम अपने dog को, cat को pet रख दें, वैसे अगर ants को pet रख लिया तो कौन कौन सी problems हो जाएंगी? So the problems would be, if you know, there might be several problems if we keep ants as pets. अगर हमने ants को pets की तरह रख लिया तो बहुत सारी problems हो सकती हैं. पहली चीज़, वो हमारा खाना खराब कर देंगी. They will spoil food and eatables. जो भी हमारा खाने का सामान है वो उसको खराब कर देंगी. They bite. वो जो red ant होती है वो bite करती है and bites very bad. They won't listen to our orders. अब हम डॉग को बोलते हैं सिट डाउन तो वो तो बैठ जाएगा, कैट को बोलो वहाँ मत जाओ तो वो नहीं जाएगी, लेकिन एंट को मना करोगे तो वो बोलेगी भाड़ में जाओ और वो चले जाएगी. Basically, they do not listen to our orders. So first they will spoil our food and eatables, second they will bite us, and third they will not listen to our orders. And that is why it is not right or advisable to keep ants as pets. When a group of bees finds nectar, it informs other bees of its location, quantity, etc. through dancing. Can you guess what ants communicate to their fellow ants by touching each other's feelers? So basically what is saying that वो जो bees होती हैं, honey bees जब होती हैं, जैसे ही वो मान लो उनको nectar मिल जाता है तो वो क्या करती हैं, वो अपनी बाकी हनी बीज को इन्फॉर्म कर देती हैं. और वो भी कैसे इन्फॉर्म करती है? डांस करके. अरे आओ भाई लोग यहाँ पे आ जाओ, यहाँ बहुत सारा नेक्टर है, यहाँ पे खूब खाने को मिलेगा, पार्टी हो रही है यहाँ पे. एंड दे कॉल अदर्स. ऐसे ही एंड्स अपने फीलर्स के थ्रू बताते हैं तो क्या कम्युनिकेट करते होंगे? Ants communicate about food newly found by them to their fellow ants by touching one another feelers.
मतलब एंट जो हैं वो अपने फीलर्स को दूसरे के फीलर्स के साथ, जो उनके एंटीना होते हैं, उनको टच करके बताते हैं कि खाना कहाँ है। तभी देखना एक चींटी आएगी और अचानक से बहुत सारी चींटियां आ जाती हैं। कम्युनिकेशन इनका बहुत सॉलिड है बॉस। So that is why जब ants आती हैं, so what do they inform? They communicate about the location of the food and the amount of food. Accordingly workers आते हैं food को carry करके लेके जाने के लिए. So next time when you see कि किसी खाने के पास में बहुत सारे ants आ गए, so you know कि वो किस कैटेगरी के ants हैं, वो worker कैटेगरी की ants हैं. Complete the following poem with words from the box below, then recite the poem. So अब ये तो बहुत ही सिंपल है, ये आपको एक पोएम दी हुई है, उसमें और ये वर्ड्स दिए हुए हैं, you have to fill in the blanks and then read it loud. Soldiers live in barracks and birds कहाँ रहते हैं? Birds live in nest. Much like a snake that rests in a, अब snake कहाँ पे रहता है? Hole. No horse is able to sleep except in a stable. Horses कहाँ रहते हैं? Stable में रहते हैं. And a dog lives well, mind you, only in a kennel. Dogs कहाँ रहते हैं? जो dog के रहने की जगह होती है उसे हम kennel कहते हैं. To say hi to